Greetings, my dear students, and welcome to today's class. Dear students, I hope that all of you are fit and fine in your homes and you all are taking care of yourself and the people around you. Dear students, as you all have submitted your notebooks in the school, now for a few days you must be patient while you're getting back. Dear students, please make sure that the work which we are doing right now, you do it later on in your notebook and you continue your studies regularly. Dear students, studying regularly is very important because now we have the uphill battle of your midterm exams. Okay, your midterm exams, they won't be easy, and if you will not study, you will have a humongous task in front of you. Okay, you will face a lot of problems and challenges. So, dear students, all of you, please study regularly and make it a habit. Okay, now, my dear students, let's start today's class. In today's class, once again, we will be reading the chapter Ishwaran the Storyteller. Okay, Ishwaran the Storyteller. It has been written by whom? The famous cartoon man of India, the famous common man creator, R.K. Lakshman. Okay, famous cartoonist R.K. Lakshman. He had created this wonderful story as well. Okay, so what have we read up to now? That there is the central figure of Mahindra. Okay, who is Mahindra? Mahindra is the boss of Ishwaran, and Mahindra, he has to move from one place to another. Why he has to move from one place to another? Because of the nature of his job. Okay, the nature of his job is such that he has to move from one place to another. वो कभी एक जगह पे फिक्स नहीं रहते. ओके, कभी वो रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं, कभी वो एक ऐसी साइट पे होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट आ रहा है. ओके, सो Mahendra moves from place to place, and Ishwaran, who is the loyal cook of Mahendra, he also moves with Mahendra. Okay, and what is the speciality? What is the one special thing about Ishwaran? That he can make ingredients which are required for making vegetables appear out of nowhere. वो कहीं पे एक न्यू साइट पे पहुंचेंगे और वहां पर ही ईश्वरन 1 घंटे बाद ही वहां पहुंचने के एक बहुत ही टेस्टी डिश बनाकर ले आएगा. ओके, सो Ishwaran has this quality. Another quality that Ishwaran has is that Ishwaran is a storyteller. Okay, Ishwaran is a storyteller and he tells anecdotes. Anecdotes क्या होता है? जो किसी चीज के बारे में या किसी पर्सन के बारे में कोई स्टोरी होती है, तो बहुत ही वंडरफुल एनेक्डोट्स सुनाता है और स्टोरीज को बहुत ही इंटरेस्टिंगली सुनाता है. ओके, जैसे कोई राइटर की बुक में जैसे स्टोरी होती है वैसे स्टोरी सुनाता है. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, let's read and find out what's more in the story of Ishwaran the Storyteller. All of you, please come to chapter number 3 and please come to page number 40. The place I come from is famous for timber. Ishwaran would begin. There is a richly wooded forest all around. So अब ईश्वरन अपनी कोई एक उसने किस्सा स्टार्ट किया है सुनाना. ओके, उस किस्से में क्या है कि वो बता रहा है कि जिस जगह से वो आता है दैट इज फेमस फॉर टिम्बर. टिम्बर क्या होता है? कमर्शियल टाइप ऑफ वुड. ओके, जिससे आपके बेड वगैरह बनते हैं. देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. रिचली वुडेड मीन्स कि जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं
ओके, पेड़ों पे ही से ही तो हमें वुड मिलती है ना, सो दैट्स व्हाई रिचली वुडेड फॉरेस्ट. The logs are hauled onto the lorries by elephants. Okay, logs. Logs क्या होते हैं? जो वुड जब पेड़ कटता है तो उसके बीच में जो ऐसे पार्ट होता है, जो बीच का तना जो होता है, उसे हम लॉग बोलते हैं. वो लॉग्स दे आर हॉल्ड. हॉल्ड मीन्स दे आर पुल्ड. उनको उठा के कैसे रखा जाता है? एलिफेंट से रखते हैं उन्हें लॉरीज के ऊपर. ओके, लॉरीज तो सबको पता होगा, ट्रक्स को बोलते हैं, फिर भी अगर नहीं पता कीप इन माइंड. ओके, जो स्मॉल ट्रक्स होते हैं उन्हें लॉरीज बोलते हैं. तो एलिफेंट्स उनमें रख पाते हैं क्योंकि वहां पे भाई जंगल में सरफेस ऐसी नहीं होती कि जहाँ पे मशीन्स काम कर सके बहुत इजीली. सो एलिफेंट्स डू दिस. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced moth is not able to control them. So वो एलिफेंट के बारे में बता रहे हैं. देखो, अब वो किसी भी चीज के बारे में तुम्हें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता हुआ नहीं मिलेगा. ओके, अगर ईश्वरन को तुम्हारे एग्जाम में कहा जाए कि एक आर्टिकल लिखो या एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखो, ईश्वरन तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा उसमें. वाई? बिकॉज ही इज गिविंग so many details. Okay, बहुत अच्छे से डिटेल्स दे रहा है. So he is telling us about the elephants that if elephants go wild, अगर वो पागल हो जाएं तो जो एक्सपीरियंस मोहत है, जो मोहत कौन होता है? जो एक पर्सन होता है वो एलिफेंट को कंट्रोल करता है, उसे मोहत कहते हैं. ओके, तो वो मोहत भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. After this prologue क्या होता है? Introductory writing. मतलब जो कि introductory description हो उसे हम prologue कहते हैं. जनरली ये बुक्स में दिया होता है. prologue जो होता है, बुक्स को पढ़ने से पहले आपको उसका prologue होता है. ओके, जिसे आप पढ़कर आप बुक के बारे में और जान सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं. One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. One day a tusker means elephant, क्योंकि elephant के tusk होते हैं ना, वो जो उसके दो आगे के दांत दिख रहे होते हैं वो. ओके, वो escape हो गया और वो क्या कर रहा था? He was stamping on bushes, पैर रख रहा था bushes के ऊपर, और जो he was tearing up wild creepers, जो जंगली बेल होती हैं. क्रीपर्स मीन्स बेल, जो वाइल्ड बेल्स होते हैं वो उनको फाड़ रहा था. You know sir how an elephant behaves when it goes mad. So elephant ऐसे ही behave करता है जब वो पागल हो जाता है. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. So अब देखो, ईश्वर भी जो है वो स्टोरी बहुत ही पैशनेटली सुना रहा है, वो स्टोरी के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो गया है. ओके, अब जब हम किसी की चीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट कर जाने लग जाते हैं. राइट? अब ईश्वरन भी है, अपनी स्टोरी से कनेक्ट हो गया एंड ही हैज गॉट सो कॉट अप. सो कॉट अप मीन्स सो इन्वॉल्व दैट he would get up from the floor, वो फ्लोर से उठता एंड जंप अबाउट, ऐसे जंप करेगा एंड स्टैम्प करेगा, चल के दिखाएगा. एलिफेंट जैसे पागलों की तरह चलते हैं वैसे ईश्वर बिल्कुल एक्टिंग करके दिखाता था. ओके, हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट. एमुलेशन का क्या मतलब है? कॉपिंग द एक्शंस. जब आप किसी के एक्शंस की कॉपी करते हैं दैट इज कॉल्ड एमुलेटिंग. राइट? जैसे कहते हैं एमुलेट द एक्शंस ऑफ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जो क्या तुम उनकी तरह करो. ओके, प्लीज कंफ्यूज मत होना, रूट वर्ड जो है वो एम्यूलेट है. ओके, और एम्यूलेट के जैसा एक वर्ड है इमिटेट. ओके, इमिटेट क्या होता है? जब हम किसी को नेगेटिवली कॉपी करते हैं, किसी का मजाक बनाने के लिए हम उसकी नकल करके दिखाते हैं. एम्यूलेट क्या होता है? जब हम किसी के एक्शंस को, उसके अच्छे कामों को हम कॉपी करते हैं. ओके, वो एम्यूलेट होता है. इमिटेट होता है जब हम नेगेटिवली उसका मजाक उड़ाने के लिए उसकी कॉपी कर रहे होते हैं. The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue.
It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. तो वो बता रहे कि एलिफेंट जो है वो कहाँ पहुंच गया, वो आउटस्कर्ट्स पे पहुंच गया टाउन के, वो जो बिल्कुल बाउंड्रीज जो होती है टाउन की वो वहां पहुंच गया। एंड जो फेंसेस लगे थे वो उनको माचिस की तीली की तरह तोड़ रहा था, बहुत ही इजीली विदाउट एनी एफर्ट वो उन्हें तोड़ पा रहा था। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली वो एलिफेंट है, और एलिफेंट्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स। And then again it smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. जो भी उसके सामने सामान आया उसने उसको स्मैश कर दिया, उसको फोड़ दिया। People ran helter skelter in panic. अभी लोगों की सिचुएशन क्या होगी ऐसे में जब एक एलिफेंट डैमेज कर रहा है? They ran helter skelter. Helter skelter means here and there. वो इधर उधर भागते हैं, ओके okay? वो इधर उधर भागते हैं by just to save their life, because when the danger of elephant is seen by them, they, what is the first thing they think about? Their life, है ना? अगर कोई एक पागल कुत्ता ही तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा तो क्या करोगे? जो भी सामान होगा उसको छोड़ के जान बचा के भागोगे कि कहीं कुत्ता ना काट ले, राइट? तो इन लोगों के सामने कौन है? एलिफेंट। अब सोचो, एक कुत्ता तो छोटा सा होता है और एलिफेंट कितना बड़ा होता है, ओके? कुत्ता काटेगा तो सिर्फ इंजेक्शन लगेगी, बट एलिफेंट ने अगर कुछ किया तो लाइफ पे रिस्क हो सकता है, ओके? सो उस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में पीपल दे रन हियर एंड देयर। The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. So elephant उसके बाद आउटस्कर्ट से फिर वो स्कूल के कहाँ पहुंच गया? आउटस्कर्ट, टाउन के आउटस्कर्ट से वो कहाँ पहुंच गया? एक स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच गया, ओके? प्लेग्राउंड में पहुंच गया तो उसको देख के ऑब्वियसली बच्चे क्लासरूम्स की तरफ भाग गए एंड दे लॉक्ड देमसेल्फ इनसाइड, ओके? दे लॉक्ड देमसेल्व्स इनसाइड, उन्होंने खुद को अंदर से बंद कर लिया। The beast grunted and wandered about. The beast कौन है? Elephant, okay? The beast grunted. Grunted means it made a short low noise. जैसे वो सांस जोर से खींचता है एलिफेंट ने, वैसी ही आवाज निकाली। And wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water and uprooting the shrubs. So अब एलिफेंट यहाँ पे भी वही डिस्ट्रक्शन कर रहा है जो उसने पहले करी थी, ओके? यहाँ पर उसने गोल पोस्ट निकाल दिया, वॉलीबॉल नेट को फाड़ दिया, और जो पानी के लिए ड्रम्स रखे थे उनको पिचका दिया, ओके? एंड अपरूटिंग द श्रब्स, जो झाड़ियाँ लगी हुई होंगी उनको भी फाड़ कर फेंक दिया, उनको भी निकाल दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. So teachers ने क्या किया? They climbed the terrace, क्योंकि terrace एक safe जगह है, वहाँ पे elephant नहीं आ सकता। So they all climbed to that place and they watched the depredations of the elephant. Depredations क्या होता है? Destruction. Elephant जो destruction कर रहा था वो लोग उसको देखते रहे, बिकॉज इस सिचुएशन में किसी भी एक अनट्रेन्ड ह्यूमन के लिए, किसी भी एक एक टीचर के लिए या एक स्टूडेंट के लिए या एक कॉमन मैन के लिए एलिफेंट के सामने आना इम्पॉसिबल है, बिकॉज द वाइल्ड एलिफेंट इज अ थ्रेट टू लाइफ। देयर वाज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, ओके? कोई एक भी आदमी नहीं था ग्राउंड पे। The streets were empty, as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियां थी, वो खाली थी और ऐसा लग रहा था as if the inhabitants कौन होते हैं? पीपल ऑफ अ प्लेस, जो उस जगह पे रहते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि उस जगह पर रहने वाले लोग वो सब
गायब हो गए थे. ओके. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me suddenly. अब ईश्वरन देखो उसको स्टोरी बता रहा है अपने उसमें. ओके. वो अपनी हिस्ट्री बता रहा है कि देखो उसके साथ क्या हुआ, कि वो पूरा ड्रामा देख रहा था रूफटॉप से, एंड देन ही डोंट नो व्हाट केम ओवर हिम सडनली. अचानक से उसे पता नहीं उसमें कौन सी ताकत आ गई, या उसमें कौन सा एक व्हाट वी से कि एक भूत आ जाता है. ओके. तो ऐसे कुछ भूत आ गए, कुछ स्पेशल चीज आ गई उसमें. ओके. कोई सुपर नेचुरल एंटिटी आ गई उसमें. ओके. कि ईश्वरन अब वो एक बच्चा नहीं रहा. ओके. नाउ समथिंग स्पेशल इज अबाउट टू हैपन. I grabbed the cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. अब देखो सब लोग एलिफेंट से डर रहे हैं. ओके. हर कोई एलिफेंट से डरा हुआ है, लेकिन ईश्वर ने स्टिक ली और टीचर से, और वो खुले में चला गया. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. तो एलिफेंट ने क्या किया, उसको ईश्वरन को देख के कि अरे मेरे सामने कब एक एनिमी आया है. ओके. क्योंकि अभी तो कोई भी उसके सामने नहीं आ रहा था, तो उसने ग्रंट किया, उसने छोटी हल्की आवाज निकाली, और उसके बाद जो उसने अपनी ट्रंक में, जो उसने अपनी सूंड में एक ट्री की ब्रांच पकड़ रखी थी, उसको स्विंग किया. ओके. उसको स्विंग क्यों किया? ताकि वो मार सके ईश्वरन को. ओके. ईश्वरन को अटैक करने के लिए उसने स्विंग किया. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. उसने अपने पैरों को जोर से पटका. Stamped means पटकना. Okay. And it kicked up a lot of mud. Obviously जो मिट्टी थी वो उड़ी. And it looked frightening. Frightening means काफी डरावना सीन था वो, काफी डराने वाली सीन लगा वो. But I moved slowly towards it, stick in hands. People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. But ईश्वरन ने फिर क्या किया? ईश्वरन डरा नहीं, और वो एलिफेंट की तरफ ही चला. Okay. And the people, what the people they were doing? They were watching the scene from the rooftop. वो छत के पास से ही वो देख रहे थे वो सीन, छत पे खड़े होकर ही वो देख रहे थे वो सीन, और ऐसा लग रहा था कि वो लोग सब हिप्नोटाइज है. ऑब्वियसली एक स्पेशल पर्सन एक ऐसे बिहेव कर रहा है तो कोई भी सरप्राइज हो जाएगा. ओके. एंड अकॉर्डिंगली जो रूफटॉप पे लोग थे, जो टीचर स्टूडेंट्स थे वहां पे, दे वर आल्सो एज इफ हिप्नोटाइज्ड. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी. सो एलिफेंट ने उसकी तरफ कैसे देखा? रेड आइड देखा. ओके. ऐसे देखा कि जैसे वो फटाफट से उसकी तरफ रश करेगा, उसकी तरफ भागेगा. It lifted its trunk and trumpeted loudly. फिर उसने क्या किया? उसने अपनी सूंड उठाई और it trumpeted loudly. Trumpeted क्या होता है? कि उसने अपनी सूंड में से आवाज निकाली जोर से. At that moment I moved forward and mustering all my force. So जब एलिफेंट ने ऐसे आवाज निकाली, so at that moment ईश्वरन he moved forward, वो आगे बढ़ा. Mustering all my force. Mustering means इकट्ठा करते, उसने अपना जितना भी उसमें ताकत थी इकट्ठा करते हुए उसने whacked its third toenail on the quick. So उसने क्या किया? whack किया, उसने मारा उसके थर्ड टोनेल पे जल्दी से. ओके. क्विक स्ट्राइक दी. ओके. इससे जैसे वैकामोल, अगर आपने गेम खेला हो किसी ने. ओके. वैकामोल क्या होता है? उसमें एक इंसेक्ट टाइप से निकलते रहते हैं और उनको हैमर से हिट करना होता है, तो उसके पॉइंट होते हैं. ओके. सो उसने भी वैक किया, उसने भी फटाफट से उसके थर्ड टोनेल पे वैक किया बहुत ही क्विकली. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट. जो वो बीस्ट था वो ऐसे एकदम स्टन हो गया, एकदम से रुक गया, ऐसे ही लगा कि वो मूव ही नहीं हुआ. ओके. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड. उसके बाद उसने क्या किया? उसकी वो फिर
उसकी पूरी बॉडी कांपी, हेड टू टो, ओके, उसकी बॉडी इट शिवर्ड, शिवर्ड मीन्स कांपना, फिर उसकी पूरी बॉडी कांपी, एंड देन ही कोलैप्स्ड, ओके। उसके बाद क्या हुआ, वो एलिफेंट जो था, जब उसके थर्ड टोनेल पर ईश्वरन ने वैक किया एक स्टिक के साथ, तो उसकी पूरी बॉडी कांपी, वो रुक गया और फिर वो गिर गया, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, the elephant is not moving at all now. Now, my dear children, today we will be reading till here only. And if you have any doubts in today's lesson, then you can let me know. Okay, you can ask from in the Kaizala app, or you can give me a call, or you can send me a message. Okay, dear students, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं इस चैप्टर के, ओके। बहुत ही बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी के लिए जरूरी है। सो मेक श्योर यू रीड दिस चैप्टर एंड look up the meaning of difficult words from the dictionary, okay? So dear students, that's it for today. Thank you and have a great day ahead.